Hello and good morning, students. Myself Manoj Kumar Chand, PGT Biology. Today I want to discuss with you about biology, its introduction, and starts our syllabus. Before it, I covered my whole first unit with you, but this video lecture for you to better understood once again and revised it. So, welcome back once again in CPA Futuristic Doctors Group, and welcome once again to all of you to take admissions and trust once again on Central Public Academy for your bright future. So, you all are newcomers. You passed your 10th class examination, so congratulations for it. And you take admission in biology group in class first year. That's why we welcome you in this futuristic doctors group of Central Public Academy. This would be futuristic doctors group. Okay? Sure. First of all, before going to discuss my lectures on our topic, first of all, I share with you some basic concepts about science and an introduction of my subjects. The subject is biology here. And what is biology? Biology क्या है? इसको जानने के लिए हमें सबसे पहले मैटर को समझना पड़ेगा. मैटर, M-A-T-T-E-R, matter. What is matter? I think you all know very well that anything which occupies space having weight and mass, these things, if anything which have three characteristics, first occupied space, second having weight, and third a certain mass. You see here, this is a marker, and this marker, it occupies space here on my hands. We also occupy space here on the weight and mass. So all these three categories you see all around yourself. We see our all around. Nothing we see which is not come under this category. वे सभी चीजें जिन्हें हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं,
चाहे वो पेड़ पौधे हों, कोई जीव जंतु हों, वनस्पतियां हों, ये सब कुछ जो भी हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं वो सब का सब क्या है? मैटर है। और ये जो मैटर है, ये मैटर आपके दो तरीके के हैं। ये मैटर दो तरीके के हैं। जैसे मैं लिख रहा हूं, आप अपने चारों तरफ बिल्डिंग्स देख रहे हैं, रोड देख रहे हैं, आप बुक्स, कॉपी, पेन, प्लांट्स, डॉग, काउ, मैन, एक्सेट्रा। ये जितनी भी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं या जो भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, ये सब आपके इस कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। यानी सब में ये जितने भी लिखे हुए हैं यहां पे बोर्ड पे, और जो कुछ भी आप अपने चारों तरफ देख रहे हैं, उन सब में वो ऑक्युपाइड स्पेस, स्थान घेरने की क्षमता, उनमें कुछ न कुछ वेट, उनका भार है, और मास उनका एक निश्चित द्रव्यमान मास है। यानी ये सब मैटर है। और ये मैटर आपके दो तरीके के हैं। These are two types. Means this matter is two types. अब इसमें आप स्वयं देखिए कि जो बिल्डिंग है, जो रोड है, बुक्स हैं, कॉपी है, पेन है, ये इतनी चीजें आपकी हैं नॉन लिविंग। तो ये नॉन लिविंग मैटर है। ये जो मैटर है वो नॉन लिविंग है, जिसे हम निर्जीव कहते हैं। ओके? लेकिन वहीं पे जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स की बात कर लीजिए, आप इस डॉग की बात कर लीजिए, काऊ की बात कर लीजिए, मैन की बात कर लीजिए, ये सब क्या है? ये लिविंग थिंग्स हैं। ये क्या है? ये लिविंग थिंग्स है। यानी मैटर आपका दो तरीके का है। फर्स्ट नॉन लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड लिविंग थिंग्स। एंड यू सी हियर द एग्जांपल। अब हमारी बायोलॉजी क्या करती है? बायोलॉजी के अंतर्गत हम इन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स अंडर बायोलॉजी। यानी हमारी बायोलॉजी इन लिविंग थिंग्स की स्टडी करती है। ओके? बायोलॉजी वर्ड, दिस बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल given by Treviranus and Lamar. There are two scientists, Treviranus
and Lamarck, who gave the word biology in 1802. Lamarck and Treviranus in 1802 gave the word biology. Okay, and this biology is made up of two words, that is bios plus logos. Means there are two Greek words, bios and logos. This bios means living, and this logos means study. That's why biology means study of living organism. मीन्स कि हम जो भी इस पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनकी जो स्टडी करते हैं वो इस बायोलॉजी के अंतर्गत। और ये बायोलॉजी की भी दो ब्रांचेज हैं, इसकी भी दो ब्रांचेज हैं। एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। जूलॉजी it means study of animals only, means zoology is the branch of biology under which we study about animals only. Like this, in botany study of plants only. The father of biology is Aristotle. The father of zoology also Aristotle, but father of botany is Theophrastus. So, in biology, there is two main branches, zoology and botany. The study of animals only under zoology, and the father of this zoology is Aristotle. And in botany, study of plants only, and the father of botany is Theophrastus. Now, you see around yourself, आप अपनी चारों तरफ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, क्या वे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम है? उनका स्वरूप, उनकी आकृति, उनकी संरचना, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके हैबिट एंड हैबिटेट्स यानी रहन सहन, वासस्थान, उनका बिहेवियर, नो, वो सब अलग अलग है। और अगर आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया में आप देखें, तो आप जिस एरिया में हैं, इस एरिया में मैंगो के प्लांट्स,
वीट के प्लांट, मस्टर्ड के प्लांट, राइस के प्लांट, शुगर केन के प्लांट, काऊ, बफेलो मिलेंगे, लेकिन लायन नहीं मिलेगा। मंकी मिलेगा, लायन नहीं मिलेगा। बहुत सारे संतरा, ऑरेंज, एप्पल नहीं आपको यहाँ, ओनियन होगा। सो जो ये पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ पे विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्रकार के आपके परिस्थितियां हैं, इकोसिस्टम्स हैं, और उन इकोसिस्टम्स में वहां के हिसाब से अलग अलग प्रकार के प्लांट्स और एनिमल्स, और इनमें किसी भी प्रकार से अगर आप देखें तो ये पूरा पृथ्वी पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो पूरी पृथ्वी आपकी एक कबाड़खाना से लगी है, अनटन। लेकिन बट व्हेन यू गो टू स्टडी about all the organisms present on this earth, then you see, आप वहां देखेंगे कि वो एक सिस्टमेटिक वे में डेवलप हुए हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई क्रमबद्धता है, और इन्हीं चीजों को एक टर्म यहां पे आता है, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। मीन्स जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब डिफरेंट टाइप्स के हैं, डिफरेंट शेप के हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के हैं, उनका डिफरेंट बिहेवियर है, हैबिटेट है। सो ये जो डिफरेंसेस हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता। अब ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपने यहां देखे, और इनकी जो ये बायोडाइवर्सिटी आप देख रहे हैं, ये आपके इस नॉन लिविंग थिंग्स से कैसे अलग है। लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बिहार में हम कह सकते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके कुछ उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बात करें तो यहां पे देख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पहली चीज होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपकी ग्रो करेंगे, उनमें वृद्धि होगा और उनका विकास भी होगा। आप एक छोटे से बच्चे को देखिए, एक छोटे से पौधे को देखिए, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, विकसित होता है, उसका विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। सेकेंड थिंग,
जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मेटाबॉलिज्म पाया जाए। यानी मेटाबॉलिज्म, परहैप्स यू नो दिस वर्ड, इस मेटाबॉलिज्म में इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैटाबॉलिज्म and anabolism. There are two things, catabolism and anabolism. You know very well that complex फॉर्म में अगर कोई चीज है, जैसे आप जो भोजन लेते हैं वो भोजन कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, ये सब क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। और जब इसे आप अपने शरीर में लेते हो एज ए फूड, तो इनका क्या होता है? डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स ब्रेकअप इनटू स्मॉलर पार्ट्स, छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इस सिंपल फॉर्म में टूटता है। यानी जैसे आपने यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एक्सेट्रा की बात की, और जब ये टूटेंगे तो ये ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। ओके, ब्रेकअप होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल का इस सिंपल फॉर्म में टूटने के प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और इसी कैटाबॉलिज्म से जब ये ग्लूकोज बना, तो इस ग्लूकोज का फिर क्या होता है? ये ग्लूकोज क्या करता है? इस ग्लूकोज से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और इसी एनर्जी से ये ग्लूकोज जो हमारे शरीर को, बॉडी को एनर्जी दे रहा है, उसी एनर्जी से हमारे बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। जो ये ग्रोथ है, डेवलपमेंट है हमारी बॉडी का, वो इसी ग्लूकोज की वजह से। यानी कि ये ग्लूकोज आपकी एनर्जी यहां पे प्रोड्यूस किया, जिससे हमारी बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। नॉट ओनली आवर बॉडी बट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, आइदर दे आर प्लांट्स और दे आर एनिमल्स। अब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, कोई भी ऑर्गेनिजम्स हो, तो इसका मतलब कि उसकी जो बॉडी बनेगी, बॉडी का ग्रोथ होगा, तो उसमें फिर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स ही बनेंगे। ये पूरी बॉडी क्या है? ये प्रोटीन है। These are 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड कॉम्बिनेशंस है। सो फिर वही कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना जब बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हुआ। यानी कि इसी ग्लूकोज से जब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो फिर कहीं ना कहीं यही प्रोटीन्स बन रही हैं। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में जब आया, तो इसको कैटाबॉलिज्म कहा गया। यहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस हमने बताया, और जब वहीं इस सिंपल फॉर्म ग्लूकोज से फिर बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में फिर इस सिंपल से कॉम्प्लेक्स
फॉर्म बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। सो both the process are combined to known as metabolism. Okay. Now third thing, that is respiration. Respiration. There are many students who could not differentiate very clearly in breathing and respiration. Breathing and respiration, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन तमाम स्टूडेंट्स इस डिफरेंस को समझ नहीं पाते या क्लियर कट उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो इस डिफरेंसेस को नहीं जान पाते। इसलिए मैं जगह जगह हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं ताकि बात आपके बिल्कुल क्लियर कट दिमाग में आ जाए और आप एक बेटर कॉन्सेप्ट डेवलप कर सकें। रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन का मतलब हिंदी में होता है श्वसन और ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना। तो ब्रीदिंग के अंतर्गत हम बाहर से ऑक्सीजन को शरीर में अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी जब आप तेजी से सांस को अंदर खींचिए तो ये एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में चली गई, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस एटमॉस्फेयर में आ गई। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी, शरीर में ऑक्सीजन को लेना और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रोसेस हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। और ये ब्रीदिंग जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत सारे लोग इसी को रेस्पिरेशन कह देते हैं, जबकि रेस्पिरेशन क्या है कि जो ये ऑक्सीजन बॉडी में ब्रीदिंग के थ्रू ली गई, वह ऑक्सीजन जब आती है तो इसी के प्रेजेंस में ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण। आप एक बात तो जानते हैं कि ऑक्सीजन जलाती है। आपने एक एक्सपेरिमेंट भी देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि अगर एक मोमबत्ती जला दीजिए ऐसे, ये मोमबत्ती आपकी जल रही है, और इसके ऊपर आप एक शीशे का ग्लास ऐसे रख दीजिए, तो कुछ देर तक ये जलेगी, और तब तक जलेगी जब तक इसके अंदर ये ऑक्सीजन है, और जैसे ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ये जलना बंद कर देगा और ये बुझ जाएगा। यानी ऑक्सीजन किसी चीज को जलाती है। तो जैसे ही जब आप फूड लेते हो उससे एनर्जी मिलती, बॉडी का ग्रोथ होता है, तो ऐसे थोड़ी हो जाता है। कैसे होता है? वही प्रोसेस। यानी जब आपने भोजन लिया
या जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है, डिफरेंट एंजाइम्स के प्रेजेंस में उसका डाइजेशन हुआ, यानी कैटाबोलिज्म के थ्रू वो सिंपल फॉर्म ग्लूकोज में बदला। तो इस ग्लूकोज में जैसे ही आपने ब्रीदिंग किया, सांस लिया, तो आपके टिश्यू में, आपके सेल्स में, और उस सेल्स के बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया में आपका ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ग्लूकोज जो ब्लड के माध्यम से उस माइटोकॉन्ड्रिया में सेल तक पहुंचा है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पे ये जो एनर्जी मिलती है ना, ये एनर्जी एटीपी के रूप में मिलती है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में मिलती है। और इसी एटीपी को हम एनर्जी बोल रहे हैं, और इसी एटीपी से हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। अंडरस्टूड? नाउ you understood growth and development, metabolism, respiration, breathing, catabolism and anabolism. Now, fifth point, sensitivity. Sensitivity, संवेदनशीलता। आप किसी भी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, आप क्या देखते हैं? अगर कोई प्लांट्स है, तो अगर तेज धूप है तो वो मुरझा जाता है। माइमोसा पुडिका, छुई मुई, टच मी नॉट जिसे कहते हैं, जैसे ही टच करते हैं उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, हम आप दुखी भी हो जाते हैं, हैप्पी भी हो जाते हैं। ठंडा, गर्म, दुख, सुख, ये जो भी है, ये हमारी सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, और इसी सेंसिटिविटी के माध्यम से हम इन्वायरमेंट से सूचनाओं को प्राप्त करते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। इट इज नॉट कंप्लीटेड बाई ourselves but all the organisms, all the living things. Okay? Next, very important, and this is the main characteristics of all living organisms, that is reproduction. Reproduction. You know very well, no any non-living things, चाहे वो आपकी बुक्स हो, आपकी कॉपी हो, आपका पेन हो, कुछ भी हो जो नॉन लिविंग है, दे कैन नॉट एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म देयर न्यू यंग्स वन और न्यू ऑफस्प्रिंग। किसी में ये क्षमता नहीं है कि वो अपने समान दूसरा बना सके, दूसरी संतान बना सके। नहीं तो एक मार्कर है, दूसरा मार्कर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक ये पेन है, दूसरा पेन खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ये पेन प्रोड्यूस करके दूसरा पेन बना लेता। बट इट नॉट पॉसिबल इन एनी नॉन लिविंग थिंग्स, बट दोज ऑल लिविंग थिंग्स, all the living things have ability to reproduce and form their new offspring. And on the basis of this characteristics, you differentiate between living and non-living things and the characteristics of living things. आपको ये पता चल गया कि लिविंग थिंग्स या सजीव क्या होते हैं, और जिनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हीं को लिविंग थिंग्स कहते हैं। और ये लिविंग थिंग्स आप देखते हैं कि आपके सामने जितने भी हैं, ये विभिन्न प्रकार के हैं, जिसको मैंने पहले चर्चा की, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी।
यानी द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑन दिस अर्थ, दैट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। मैंने ये भी कहा कि ये जितने भी हैं वो ना तो बिहेवियरल रूप से, ना तो हैबिटेट, ना तो उनका रहन सहन, ना तो उनका आवास स्थान, ना तो उनका स्ट्रक्चर, ना तो फंक्शन, ना तो कुछ भी, सभी का सेम नहीं होता। आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी ह्यूमन बींग्स हैं, लेकिन क्या सभी एक तरह है? क्या सभी एक दूसरे की फोटो कॉपी है, एग्जैक्ट टू कॉपी है? डिफरेंसेस है। क्यों? सबका बिहेवियर अलग अलग है। क्यों? इसी को इसकी स्टडी की जाएगी वो सेकेंड ईयर में। फिर आप ये जो बायोडाइवर्सिटी है, ये बायोडाइवर्सिटी भी हमारे लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि सब एक तरह के होते तो एक ही तरह का हमको बेनिफिट्स मिलता, और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं तो हमारे सामने डिफरेंट टाइप्स के गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी इज मस्ट, और इस बायोडाइवर्सिटी के आधार पर ये जो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, इनका जो इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे यूनिवर्स में एक साथ मिलजुल कर रहने का और एक दूसरे से अंतर परस्पर संबंधित होने का कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अगर है तो उस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई भी जो ऑर्गेनिजम्स है यानी लिविंग थिंग्स है, उस ऑर्गेनिजम्स का जो स्ट्रक्चर है, जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज, आपने पढ़ा है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो हमारा लाइफ है उस लाइफ का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। यानी सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस सेल में आप देखते हैं कि डिवीजन की क्षमता होती है, यानी सेल डिवाइड करके और ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं टिश्यूज। और ये जो टिश्यू है, ये टिश्यू आपके 4 तरह के होते हैं। अगर एनिमल की बात करें, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। और अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में परमानेंट टिश्यू होते हैं, आपका पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और आपके परमानेंट टिश्यूज में जाइलम, फ्लोएम, ये सब। तो ये डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो ये आपके बनाते हैं ऑर्गन। मीन्स अगर आप एक ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एक ह्यूमन बीइंग्स में कई सारे सेल्स, किसी भी एनिमल्स में वो कई सारे सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएंगे, और वो डिफरेंट टिश्यू मिल करके ऑर्गन, चाहे उसका आईज हो, चाहे उसका हैंड हो, चाहे उसका लंग्स हो, चाहे उसका किडनी हो, जो भी हो। उसी तरह से प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल करके उसके लीव्स को बनाएंगे, उसके स्टेम को बनाएंगे, उसके फ्लावर को बनाएंगे, उसके फ्रूट्स को बनाएंगे। तो सेल से बना आपका टिश्यू, और टिश्यू से ऑर्गन, और फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स मिलके आपका क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। और इस ऑर्गन सिस्टम में आप क्या देखते हैं कि जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जो सिस्टम बनते हैं, इस ऑर्गन सिस्टम
और डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम कंबाइन होकर के आपका क्या बनाते हैं, पूरा बॉडी बनाते हैं, पूरा शरीर बनाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का, तो जो ऑर्गेनिजम्स है उस ऑर्गेनिजम्स की जो होल बॉडी है, उस होल बॉडी का जो फॉर्मेशन है, जो यूनिट है, वो ये सेल है। और फिर ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो आपके यहां पे देख रहे हैं कि सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑर्गेनिज्म तो फिर इंडिविजुअल हुआ, एक पर्टिकुलर किसी भी प्लांट्स का, किसी भी एनिमल्स की बात यहाँ पे हो रही है, लेकिन ये डिफरेंट नहीं है, ग्रुप में नहीं है, वो सिंगल की बात हो रही है। लेकिन जैसे ही आपका ये एक ऑर्गेनिजम्स अपने समान, आपने मैंने यहां बताया था कि ये रिप्रोडक्शन, यानी कि रिप्रोडक्शन इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इस रिप्रोडक्शन के द्वारा ये ऑर्गेनिजम्स फिर अपने समान संतान बनाएगा, यानी वो इंडिविजुअल से एक ग्रुप बना लिया। तो जो ग्रुप ऑफ स्पीसीज ये बनाएगा, ग्रुप ऑफ स्पीसीज, तो ये ऑर्गेनिज्म से क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन। यानी इस जो एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे था वो अपने जैसे कई सारे ऑर्गेनिजम्स बना लिया, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। अब आप देखिए कि अगर किसी जंगल में चले जाइए तो वहां पे शेरों का पूरा झुंड होगा, मंकीज का पूरा झुंड होगा। आप शहर में चले जाइए तो आदमी सारे होंगे। यानी कहने का मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म आपके ग्रुप में ही रहता है। वो अगर इंडिविजुअल है तो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन अगर ग्रुप में है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशंस बोलते हैं। और ये फिर डिफरेंट पॉपुलेशंस, जैसे अभी हमने आपको बताया कि आप अगर किसी जंगल में चले जाएं तो वहां केवल शेरों का ग्रुप ही नहीं होगा, वहां केवल मंकीज का ही ग्रुप नहीं होगा, वहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स भी होंगे, उनका प्लांट्स में भी डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होंगे, और प्रत्येक की अलग अलग स्पीसीज की अपनी अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशंस होगी। तो ये पॉपुलेशंस आगे इसका फॉर्मेशन करता है कम्युनिटी का, कम्युनिटीज का फॉर्मेशन करता है। यानी कम्युनिटी मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो डिफरेंट टाइप के प्लांट और एनिमल की अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशंस होती है, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट होती है, अपने हैबिटेट को लेकर के, अपने फंक्शंस को लेकर के, अपने लाइफ के सर्वाइव को लेकर के। तो वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरपर्सनल रिलेटेड होते हैं, परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। इसलिए वो मिल करके वहां पे वो कम्युनिटी आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और ये इकोसिस्टम भी आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इस इकोसिस्टम्स में जैसे डिजर्ट इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, लैंड इकोसिस्टम है, ओशन इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम है। अब अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करें तो उस पॉन्ड में आपको फ्रॉग मिलेगा, आपकी फिशेस मिलेंगी, एल्गीज मिलेंगे, ब्रायोफाइट्स के पौधे मिल सकते हैं। लेकिन अब वहां पे आप ये सोचें कि शेर मिल जाए तो ये तो संभव नहीं है, वहां पे मंकी मिल जाए ये तो संभव नहीं है, क्योंकि पॉन्ड इकोसिस्टम में उस तरह के स्पीसीज के अनुकूल, उनके आकार से, उनके हैबिटेट के अनुसार, उनके बिहेवियर के अनुसार चीजें नहीं हैं। इसलिए वो कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये डिफरेंट टाइप के जो इकोसिस्टम होंगे,
या डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम मिलकर के आपका क्या बनाएंगे, बायोम्स। ये क्या बनाते हैं, बायोम्स बनाते हैं। और जो ये बायोम्स आपके होते हैं, उस बायोम्स में डिफरेंट टाइप की जो इकोसिस्टम है वो आपके सम्मिलित होते हैं, और यही मिलकर के आपका पूरा का पूरा बायोस्फीयर्स बनाते हैं, जीवों का एक संसार बनाते हैं, बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स यानी कि जो ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है, इस पूरे यूनिवर्स में अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर के चले तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म इस छोटे से सेल से शुरू होता है, उसकी संरचना। हम आप या एक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्रीना, दैट इज प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, वो एक सेल एंड डिवाइड होकर के टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और बॉडी, यानी एक ऑर्गेनिज्म बना। और ये एक ऑर्गेनिज्म, यह भी अब काऊ, गोट, मंकी, लायन, मस्टर्ड, व्हीट, राइस, शुगर केन, different type of plants and different type of animals have their different type of behavior, different type of habitat, different type of ecosystem. So ये आपके ऑर्गेनिज्म और ये पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करेंगे, पॉपुलेशन से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम बनेगा, इकोसिस्टम से बायोम्स और फिर बायोस्फीयर। यानी इस पूरे यूनिवर्स में आपके डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बायोडाइवर्सिटी है, उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अलग अलग विविधता है। और अगर ऐसे देखें तो ये फिर कबाड़ खाना लगेगा, लेकिन मैंने अभी बताया था आपको कि जब माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस करते हैं हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का, तो कहीं ना कहीं उसमें एक क्रमबद्धता दिखाई देती है। उसी क्रमबद्धता को जानने के लिए हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू।